Let's start the lecture. We ended up the last lecture on this slide, which indicates different causes of deficiency of vitamin B12, also called as cobalamin. One of the most important causes is vegetarians, which do not consume any sort of meat or protein products. Inability to absorb vitamin B12 from food, such as few intestinal diseases, stomach diseases, in which the major area is diseased and the cells are not functioning properly. So the transport of various macro and micromolecules will be affected, including vitamin B12. Stomach or intestinal disorder that limits the absorption of vitamin B12. Then comes a pernicious anemia. आप रिकॉल कर सकते हैं कि कल हमने इसके बारे में पढ़ा था pernicious anemia. uh, if you have to define pernicious anemia, what would be the definition of pernicious anemia? In short, deficiency of which particular substance leads to a condition called as pernicious anemia. इसको थोड़ा सा recall करें जी. Loss of intrinsic factor. Now, this is Saira. Okay, Saira, would you like to tell me intrinsic factor? What is the function of intrinsic factor, or what is the role of an intrinsic factor as far as vitamin B12 is concerned? Intrinsic factor क्या करता है? Okay, it binds to vitamin B12 and makes it travel in the intestine. Very good. Makes it travel in the intestine as well as it assists in its absorption. ठीक है, उसकी absorption possible नहीं होती, travel भी करवाएगा, ठीक है, और bind करेगा उसकी membrane के साथ जब उसकी absorption होनी है vitamin B12 की from the intestine into your circulation. So whenever there will be no intrinsic factor, obviously the vitamin B12 you will consume in your diet will not be able to get absorbed into your bloodstream. आपकी बॉडी का पार्ट नहीं बनेगा, वो इंटेस्टाइन में ही रहेगा और आपके स्टूल से पास ऑन हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, it will be wasted. So a condition in which there is a deficiency of intrinsic factor is called as pernicious anemia. If, for example, intrinsic factor is there, but there is wholly solely deficiency of vitamin B12, such as someone is not consuming a diet containing vitamin B12, that would not be called as pernicious anemia. ठीक है, this should be clear. अगर pernicious anemia पूछा जा रहा है तो intrinsic factor लाजमी है, ठीक है, और अगर vitamin B12 deficiency पूछी जा रही है तो आप you will not say pernicious anemia because intrinsic factor is there. There's no disease or there's no deficiency or there's no genetic problem that is leading to deficiency of intrinsic factor, but there is purely a deficiency of vitamin B12. That is not pernicious anemia. ठीक है, that is a deficiency of vitamin B12 that would lead to megaloblastic. Both will lead to megaloblastic anemia. ठीक है, आपकी बॉडी में vitamin B12 या तो आप कंज्यूम नहीं कर रहे तो फिर भी ज़ाहिर है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, या फिर उसकी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर कोई हर्डल आती है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट या उसको एब्जॉर्ब करने का कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी है तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ सकता, तो फिर भी दैट वुड लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एज वेल. ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. अगर स्पेसिफिकली आपको इंट्रिंसिक फैक्टर का पूछा जाएगा तो आप पर्निशियस एनीमिया बताएंगे, या ऑन द अदर हैंड आपसे पर्निशियस एनीमिया पूछा जाता है तो आप इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी बताएंगे. दैट वुड लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. ठीक है, डजंट मैटर आई मीन हाउ मच यू आर कंज्यूमिंग इन योर डाइट द विटामिन B12. ठीक है, सो दिस शुड बी वेरी क्लियर. कंपटीशन ऑफ अवेलेबल विटामिन B12 बाय पैरासाइट्स. ठीक है, जब जब ये आपको डिफरेंट हेलमेंट्स या पैरासिटिक इन्फेक्शंस होती हैं जो जो आम जुबान में कहते हैं कि जी पेट में कीड़े हैं, ठीक है, पैरासाइट्स हैं, दे यूजली कम्पीट फॉर विटामिन B12. वो उसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर हिंड्रेंस पैदा करते हैं, उसको होने नहीं देते, जिसकी वजह से एब्जॉर्ब नहीं होता विटामिन B12.
वैसे भी ऐसी स्टेट के अंदर या तो एब्डोमिनल पेन और डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट, ठीक है, तो आपकी इंटेस्टिनल फंक्शन ऐसे ही ऑल्टर हुआ होता है, सही है। एट द सेम टाइम दे आल्सो कम्पीट फॉर अवेलेबल विटामिन B12, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, ठीक है। दैट कुड लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। सो इन कॉजेज अगर आपसे पूछे जाते हैं तो इन कॉजेज को आप ध्यान में रखिए। वेजिटेरियंस, any disorder of related to intestine or स्टमक का डिसऑर्डर होगा तो आर बाइंडर इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर बनता तो वही है ना, ठीक है, वहीं से निकलता है। हमने कल बात की थी HCl और पेप्सिन की, ठीक है, आर बाइंडर की बात की थी। तो अगर स्टमक की लाइनिंग ठीक नहीं है, इट इज़ डिजीज्ड, तो उसमें से ना आर बाइंडर निकल पाएगा उसके सेल्स में से, ना ही इंट्रिंसिक फैक्टर निकल पाएगा। और इसी तरह इंटेस्टाइन की बात करें, अगर वहाँ एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होना है, ठीक है, रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करना है इंट्रिंसिक फैक्टर ने और उसको ट्रांजिट करवाना है विटामिन B12 को, अगर वो लाइनिंग या वो जो वॉल है इंटेस्टिनल वॉल, अगर वो डिजीज्ड है, कोई बीमारी है, उस ऐसा कोई डिसऑर्डर है जो कि उसको अफेक्ट कर रहा है काफ़ी, स्पेसिफिकली इलियम की बात करेंगे या आइलियम की बात करेंगे, ठीक है, ड्यूडेनम या नीचे और जो उसके लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी बात नहीं कर रहे हम, स्पेसिफिक एरिया इफ in someone is diseased affecting the ileum region, that would lead to the defective absorption of vitamin B12. और finally parasites. ओके जी, पर्निशियस एनीमिया आगे हम पढ़ चुके हैं इसको, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर दैट प्रिवेंट्स विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है इसके अंदर, आपके बॉडी के अंदर खुद ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो उसी को खुद ही से सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू कर देती हैं, किस चीज़ की, गैस्ट्रिक ट्रैक्टल सेल्स की। और गैस्ट्रिक ट्रैक्टल सेल्स एज वी नो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। गैस्ट्रिक ट्रैक्टल सेल्स में से HCl भी निकलता है, ठीक है। सो अगर वो डिजीज्ड हैं, उनकी ऑटो डिस्ट्रक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, तो ऑब्वियसली दे वोंट बी एबल टू सिंथेसाइज और रिलीज इंट्रिंसिक फैक्टर। Malabsorption of cobalamin in the elderly is most often due to reduced secretion of gastric acid, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड अगर HCl नहीं बनता बड़े लोगों के अंदर, तो दैट कुड लीड टू malabsorption. Achlorhydria is the term, okay, reduced secretion of gastric acid. The term used here is the clinical name, the condition name is achlorhydria या achlorhydria. Patients who have had partial or total gastrectomy, ठीक है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिनके अंदर गैस्ट्रैक्टमी कर दी जाती है। गैस्ट्रैक्टमी से मुराद है रिमूवल ऑफ स्टमक। तो पार्शियल का मतलब कि पार्शली रिमूव्ड, कुछ हिस्सा स्टमक का रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली, या टोटल गैस्ट्रैक्टमी, पूरा स्टमक ही रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। आई मीन डिपेंड्स, उसको कोई कैंसर है या उसको ऐसी सवेयर डिजीज़ है, उसको अल्सर्स हैं जो कि रिपेयरेबल नहीं है स्टमक के अंदर, और उसका वो वाला पोर्शन आपको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, इट इज़ इंडिकेटेड इन दैट पर्सन। इफ़ तो क्या होगा, ज़ाहिर आपके पास स्टमक ही नहीं रहा तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन पाएगा, बॉडी में और कहीं इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता। तो जितना मर्जी आप कंज्यूम कर लें डाइट के अंदर, सप्लीमेंट्स ले लें, जो मर्जी कर लें, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो इंटेस्टाइन के अंदर से एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 की नहीं हो सकती। It is a type of megaloblastic anemia characterized by decreased number of enlarged red blood cells, ठीक है। जो उनका स्ट्रक्चर होगा, जो उनकी अपीयरेंस होगी, दैट वुड बी, दे वुड बी enlarged, इसी वजह से हम मेगैलोब्लास्ट बोलते हैं उनको, ठीक है। एंड दे विल बी रिड्यूस्ड इन नंबर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनीमिया, ठीक है। RBCs कम हो जाएंगे, मगर जो होंगे वो एबनॉर्मल फॉर्म होगी, एबनॉर्मल शेप होगी, ठीक है। दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज enlarged. सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो सकती हैं, सच एज नमनेस एंड टिंगलिंग इन द हैंड्स एंड फीट. Somebody comes to you and says, खास तौर पे ओल्ड एज के अंदर, एंड सेज कि जी मेरे हाथों में या पैरों में मुझे नमनेस फील होती है, सुन हो जाता है, ठीक है, या मुझे पिंस या नीडल सेंसेशन होती है, ठीक है, तो आपके ज़हन में विटामिन B12 डेफिशिएंसी आनी चाहिए. देन लेटर ऑन आप उससे हिस्ट्री पूछेंगे, उसकी डाइट कैसी है, उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, इज ही टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशंस और एनीथिंग दैट यू वुड सस्पेक्ट कि जी उनको लेने से, उनको यूज़ करने से आपको इसकी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो सकती है और विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है. मगर ये इनिशियल जो साइंस जो सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट जो प्रेजेंट करता है आपको, ओके मैंने खुद भी बोल दिया अभी साइंस, ओके
Do you know the difference between symptom and a sign? What is the difference between G? A person can live without a stomach. Obviously, pernicious anemia is deficiency of इंट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, आपकी बॉडी विल बी डेफिशिएंट इन विटामिन B12. ऑटोमेटिकली द फाइनल रिजल्ट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. अनदर क्वेश्चन आपने पूछा है मेरे से, सर कैन अ पर्सन लिव विदाउट स्टमक? यस ही कैन और शी कैन. इज अ टर्म कॉल्ड एज टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन, TPN. ठीक है, आपको IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं और ऐसा एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर, इन केस ऑफ जिन लोगों के स्टमक नहीं होते या जो ओरल इंटेक नहीं कर पाते, ठीक है, और वैसे भी जो सर्जरीज हैं बड़ी इन्हांस्ड हो गई हुई हैं, वो डायरेक्टली स्टमक को बाईपास करके डायरेक्टली इंटेस्टाइन के अंदर भी आपका फूड जा सकता है. ठीक है, उसको बाईपास कर दिया जाता है. ओके जी, मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम एंड साइन. इसको थोड़ा सा अफीफा, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे अपनी अपनी स्टेटमेंट को. पेशेंट टेल सिम्टम, वेरी गुड. जो भी वो प्रेजेंट कर रहा है अपने अपने वर्ड्स में बता रहा है आके, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सिम्टम. डॉक्टर टेल साइन, डॉक्टर विल एलिसिट साइन. ठीक है, डॉक्टर विल एलिसिट, जब एग्जामिनेशन करता है या वो हिस्ट्री की डिटेल के अंदर जाता है उससे वो एलिसिट करेगा. ठीक है, नॉट टेल. ओके sir, sign is something that can be seen or observed, by symptoms something that can be observed by fed. Okay, whatever the patient is experiencing. For example, मैं मिसाल देता हूँ, वो कहता है जी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है. That is a symptom. पेशेंट आपको प्रेजेंट कर रहा है कुछ कंप्लेंट्स के साथ. ठीक है, ओके. पेशेंट आपको कहता है मेरी स्वेलिंग है. उस स्वेलिंग को आप एग्जामिन करते हो और उसके अंदर जो जो फाइंडिंग्स होती हैं वो साइन, उसकी वो रेडेंड है, रेडनेस हुई हुई है उसके ऊपर. ठीक है, चलो पेन के ऊपर ही बात करते हैं. पेशेंट विल से आई हैव गॉट पेन इन राइट आर्म. यू विल एज अ डॉक्टर, दैट इज अ सिम्टम. ठीक है, पेन इन द राइट आर्म, ये आप सिम्टम है. ओके, नाउ यू विल ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर यू हैव अ ड्यूटी कि आप उसको एग्जामिन करो, उसको मूवमेंट करवाओ. आप उसकी फ्लेक्शन करवाते हो, आप उसकी एक्सटेंशन करवाते हो. ठीक है, आप उसकी डॉर्सी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, जो जो मूवमेंट पॉसिबल है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो आप करवाते हो. और आप पेशेंट से पूछते हो या पेशेंट को ऑब्जर्व करते हो और वो कहता है मुझे पेन हो रही है इस खास मूवमेंट के ऊपर. तो दैट इज, आप उसको जब डॉक्यूमेंट करोगे तो आप कहोगे ऑन एग्जामिनेशन द पर्टिकुलर रीजन वाज फाउंड टू बी टेंडर या टेंडरनेस. ठीक है, सो दैट वुड बी अ साइन. दैट वुड बी अ साइन. पेशेंट जो आपको प्रेजेंट कर रहा है अपनी आम जुबान में, दैट इज अ सिम्टम. जो डॉक्टर उसको एलिसिट करेगा, उसको फर्दर एग्जामिन करके जो एलिसिट करेगा और फाइंड आउट करेगा, जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वो दैट वुड बी, दोज वुड बी साइंस. ओके जी. ओके, सिम्टम्स, डीमाइलिनेशन एंड रिवर्सिबल नर्व. ये अब इसी स्लाइड को करेक्ट भी करेंगे यहाँ. ठीक है, इधर आइडली क्लिनिकल फीचर्स की हेडिंग होनी चाहिए थी क्योंकि सिम्टम्स के नीचे डीमाइलिनेशन एंड रिवर्सिबल नर्व सेल डैमेज नहीं हो सकता. एज वी डिस्कस्ड, सिम्टम्स आर दोज कंप्लेंट्स विच अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू द डॉक्टर. डीमाइलिनेशन का पेशेंट को कुछ नहीं पता. ठीक है, इरिवर्सिबल नर्व सेल डैमेज ये आप बाद में लिस्ट करोगे. ठीक है, ये आप बाद में फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, विद द हेल्प ऑफ योर क्लिनिकल नॉलेज. सो दिस हेडिंग इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ. These are not symptoms. Difficulty in maintaining balance, exactly it can be a symptom. आप जब उसको चेक करोगे, आप एग्जामिन करोगे तो आप उसको नेम दोगे वर्टाइगो का. ठीक है, तो वर्टाइगो वुड बी अ साइन. और इट्स अ इन फैक्ट नॉट ओनली साइन बट इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन, इट्स अ डिसऑर्डर. ENT के अंदर पढ़ोगे जाके. डिप्रेशन, डिप्रेशन आप लेबल करोगे इट्स अ साइन. ठीक है, इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन, साइकेट्रिक कंडीशन. वो आपको कहेगा जी मुझे नींद नहीं आ रही. ठीक है, मैं परेशान रहता हूँ. ठीक है, मुझे भूख कम लगती है. कन्फ्यूजन, डिमेंशिया, मुझे चीज़ें भूल जाती हैं. तो अनएबल टू रिकॉल पास्ट
इवेंट्स, ये बताएगा आपको, दैट वुड बी अ सिम्टम। डिमेंशिया आप रूल आउट करोगे, ठीक है, आप उससे क्वेश्चंस करोगे फर्दर हिस्ट्री के अंदर और आप उसको फिर लेबल करोगे डिमेंशिया हुआ इसको। पुअर मेमोरी, ये वो कंप्लेन कर सकता है, इट कुड बी अ सिम्टम। ठीक है, जो पेशेंट्स आपको बताता है आके जो जो अपनी कंप्लेंट्स, वो सिम्टम के घेरे में आती हैं, और जो आप खुद से फाइंड आउट करते हो उसको एग्जामिनेशन करके, इन्वेस्टिगेशंस करके, आप पूरा उसका उसके सेशन, उसके साथ क्लिनिकल सेशन करके वो फिर आप साइंस एलिसिट करते हो। इन्फेंट्स के अंदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिलेड डेवलपमेंट हो सकती है। इन्फेंट्स खुद नहीं आके बता सकते ऑब्वियसली, कोई ना कोई उनका अटेंडेंट आके, उनका फादर मदर, वो आपको आके बताता है, ऑब्वियसली वो भी सिम्टम्स ही होंगे। ठीक है, ओके जी। हार्पर चैप्टर नंबर 44, ठीक है, मगर लिपिनकॉट 28 इज मोर देन सफिशिएंट। हार्पर पे बहुत ज़्यादा अगर दिल कर रहा है पढ़ने का तो चले जाना, मगर लिपिनकॉट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सारी चीज़ें कवर करता है। शायद किसी किसी जगह के ऊपर वो आरडीएस ना हो, तो आरडीएस के लिए फिर आप चैटर्जी या हार्पर के ऊपर चले जाओगे, या सिंपली इंटरनेट से निकाल लेना, ठीक है, किसी भी रिलायबल आर्टिकल से या रिलायबल साइट से, ठीक है, वो आरडीएस देख लेना। मैंने आपको सारों की वैसे करा दी हैं, ठीक है, अगर लिखते गए वो साथ साथ तो आपके पास होनी चाहिए। Lippincott 28 chapter is more than sufficient for water soluble vitamins. Any questions related to water soluble vitamins, so that we move on to the fat soluble ones? जी, जी बताइए, करें शुरू वो। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। बाय अदर्स बेसिकली डॉक्टर ही होगा ना, ठीक है। यूजुअली जो ले मैन लैंग्वेज होती है, वो जो जो उसके इर्द गिर्द के टेनेंट्स होते हैं, अगर वो डॉक्टर नहीं है, वो यूजुअली नहीं वो आपको बता पाते। वो ये आके कभी भी नहीं कहेगा जी आई हैव टेंडरनेस इन माय टमी, वो कहेगा मुझे आई हैव अ पेन इन माय टमी। तो टेंडरनेस तो आपने फिर देखनी है ना, हाथ उसको जब लगाओगे, उसको एग्जामिन करोगे, ठीक है, कोई पैल्पेशन करोगे, कोई इंस्पेक्शन करके उसके बाद उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, स्टेथोस्कोप लगाओगे, ऑस्कल्टेट करोगे, तो जो फाइंडिंग्स आएंगी, राइट, ठीक है, तो अटेंडेंस आपने बतानी है, वो साइन में आ जाएगी। वो आके आपको ये बताएगा पेशेंट के, यार मुझे पेन हो रही है फलानी फलानी जगह के ऊपर, ठीक है, ओके जी। Again, we are going to start fat soluble vitamins now. Would you like to tell me what are different fat soluble vitamins? Can you name them? There are four fat soluble vitamins. जी, वाह जी वाह, क्या बात है। ADE, what does it stand for? ठीक है, very good. Retinol, very good, very nice. D stands for? Beta, Kawasaki disease is related to your cardiovascular system. ठीक है, it's probably small to medium size vessels को affect करती है, ठीक है। Obviously फिर differential diagnosis बन जाएगी बेटा, ठीक है। Kawasaki disease is a rare disorder, बहुत ज़्यादा कॉमन उसकी वो नहीं है, इंसिडेंस उसका नहीं है, फिर आपका डिफरेंशियल बन जाएगा ना, ठीक है। फिर आप उसका डॉपलर करवाओगे या जो एसोसिएटेड जो उसके इन्वेस्टिगेशन होगी वो करवाओगे, ठीक है। देखो कुछ कुछ हॉलमार्क साइंस होते हैं, हॉलमार्क साइंस होते हैं, फॉर एग्जांपल चेरी रेड मैकुला फॉर एग्जांपल, ठीक है, इट्स अ हॉलमार्क साइन ऑफ सम डिजीज, ठीक है। there's there's a possibility कि एक साइन दो या तीन कंडीशंस के अंदर आ जाए, ठीक है। दो या तीन कंडीशंस में आएगा तो फिर देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। जो गुड डॉक्टर होता है वो हमेशा दो या तीन पॉसिबिलिटी
चीज़ अपने जहन में रखता है, रादर कंसंट्रेटिंग और फोकसिंग ऑन वन थिंग। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली कावासाकी डिजीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम इन फर्स्ट ईयर। ऑब्वियसली व्हेन यू विल गो इन फाइनल ईयर, वहाँ जाके आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जब पढ़ोगे, सीवीएस जब पढ़ोगे, हार्ट और वेसल्स के प्रॉब्लम्स को पढ़ोगे, उसके अंदर कावासाकी डिजीज आपको सुनने में आएगी। हाँ, कहीं एग्जाम्पल के तौर पे आ सकती है, किसी और सब्जेक्ट में भी आ सकती है, क्योंकि जब बायोकेमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो गया, उसके अंदर कावासाकी डिजीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ तो फोकस करना है आपको विटामिन्स के ऊपर। ठीक है, अगर ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो आता है तो आप ऑब्वियसली विटामिन की तरफ करोगे। हाँ, जब डॉक्टर बन जाओगे या फाइनल ईयर का पेपर देने जा रहे होगे, उस टाइम के ऊपर ऑब्वियसली आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसमें कोई ना कोई और एडिंग मटेरियल होगा, कोई और ऐसी चीज़ बताई गई होगी जो कि उसको कोरिलेट करेगी। अब हार्ट मर्मर्स की बात करना शुरू कर देंगे, या वो कहेंगे कोई और चीज़, कलर डॉपलर करवाया है, उसके अंदर वेसल्स का साइज इतना है, तो फिर कावासाकी डिजीज़ की तरफ जाएगी, या और भी साइन सिम्टम्स होंगे कावासाकी डिजीज़ के। ठीक है, मगर अगर वो 2-3 कैरेक्टरिस्टिक साइंस बताता है और आपको डाइट को भी मेंशन कर रहा होता है बीच में, या उसका पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बता रहा होता है, ठीक है, या पर्टिकुलर वो कह रहा होता है कि जी ये चीज़ें नहीं वो कंज्यूम करता डाइट में, तो ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टूड कि हाँ यार वो विटामिन डेफिशिएंसी की बात कर रहा है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, हाँ, एज अ डॉक्टर ऑब्वियसली यू विल मेक, आप कल को अपने ऑफिस में बैठते हो एज अ फिजिशियन और आपके पास इस तरह इस कलर की टांग आ जाती है, तो आपके जहन में अच्छे डॉक्टर हैं अगर आप, आपके जहन में ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, आपके जहन में कावासाकी डिजीज भी आनी चाहिए और आपके जहन में विटामिन डेफिशिएंसी भी आनी चाहिए। फिर आप उसको फर्दर रूल आउट करोगे। ठीक है, रूल आउट कैसे करोगे आप? उस पर्टिकुलर विटामिन जो आपके जहन में आ रहा है, पहले तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओगे कि इट कुड बी दिस, इट कुड बी दैट एज वेल, और फिर आप उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराओगे, उसके अंदर फिर कंफर्म करके उसका एक मेन डायग्नोसिस बनाओगे, उसको ट्रीट करोगे। ओके जी, वेरी गुड। ये अवाम ने तो वाह जी वाह, ज़बरदस्त, अवाम तो छा गई है सारी। विटामिन ई, ए, पूरे में नाम आ रहे हैं सारों को, वेरी नाइस। चलो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद विटामिन ए। ये आपके सामने ये यूएचएस का वो लगाया हुआ मैंने। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स ये सारे के सारे आपने पढ़ने हैं। ठीक है, अगेन बिफोर स्टार्टिंग फैट soluble vitamins, you should be aware, you should learn the complete name of vitamin A, that is retinol or beta carotenes. Retinol is an animal origin, ये plant origin की बात हो रही है, beta carotenes की। विटामिन डी की बात करेंगे तो आपके जहन में कोलीकैल्सिफेरोल का नाम लाजमी होना चाहिए, वरना आप काफ़ी क्वेश्चंस मिस कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, कोलीकैल्सिफेरोल का नाम आ गया बट आपने तो सिर्फ विटामिन डी याद किया हुआ था फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। आप इर्द गिर्द ही पूछेंगे फिर कि कोलीकैल्सिफेरोल कौन सा विटामिन होता है, और बाकी आपको रटा लगा होगा। विटामिन के, मेनाकोइनोन्स, फाइलोक्विनोन्स, इस तरह ये नाम अगर इस तरह भी पूछा जा सकता है आपसे, और डायरेक्ट विटामिन के की बात की भी जा सकती है। अगेन विटामिन ई की बात करेंगे तो टोकोफेरोल आपके जहन में होना चाहिए, इट्स अ सेकंड नेम ऑफ विटामिन ई। और टोकोफेरोल मेंशन करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक जो हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पढ़े थे और उसके अंदर हमने देखा था कि उनके भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट नाम थे, उन सारे नामों को हमने याद करना है। और आगे फर्दर उनकी फॉर्म्स भी थी जो हमने कल फोलेट की भी की, हमने विटामिन B12 और इस तरह और विटामिन की भी की, तो उनकी फॉर्म्स भी डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो वो जो आपके MCQs हैं आप देख लो कितने ढेर सारे निकल सकते हैं। ठीक है, तो डोंट गो सिंपल। ठीक है, गो इन अ डिटेल, स्टडी इन डिटेल, और जब आप स्टडी करोगे डिटेल के अंदर तो फिर आपका लीस्ट चांस रह जाएगा कि आप कुछ मिस करोगे। प्रॉबेबली विटामिन ए ही बड़ी मुश्किलों से कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी 20 मिनट्स हमने वी हैव कंज्यूम्ड ऑन विटामिन B12। सो विटामिन ए जितना हो सकता है करते हैं, फिर वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर विटामिन ए और ई, या जो भी कम्बिनेशन बनेगा हम ये इसमें चलते हैं। ठीक है, विटामिन ए से शुरू करते हैं जी। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल बातें विटामिन ए के बारे में, बल्कि एज अ होल हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। इन कंपैरिजन टू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, द फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर रिलीज्ड, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद द फैट ऑफ द डाइट। आप जितना भी कंज्यूम करते हो फैट, कोई ख़ास प्रोसेस से गुजर के आपकी इंटेस्टाइन के अंदर से एब्जॉर्ब होता है आपकी ब्लड में। लिम्फेटिक सिस्टम, काइलोमाइक्रोन्स का नाम सुना होगा, उनके थ्रू
ट्रांसपोर्ट होता है आपकी ब्लड स्ट्रीम को, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, जैसा हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन के केस के अंदर देखा. They are readily excreted in urine and significant quantities are stored in liver and adipose tissues. Again, first lecture of vitamins जब हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने की डिफरेंसेस किए थे. इसके अंदर हमने बात की थी कि ये they can easily be stored in those areas जहाँ फैट स्टोर होता है आपकी बॉडी के अंदर. ठीक है. सो लिवर के अंदर और एडिपोज टिश्यूज के अंदर ये वाले विटामिन ए, डी, ई के स्टोर हो सकते हैं. So consumption of vitamin A and D in particular in excess of the recommended RDA can lead to accumulation of toxic quantities of these compounds. तो आपने थोड़ी सी एहतियात बरतनी होती है विटामिन A और विटामिन D कंज्यूम करने में. ख़ास तौर पे विटामिन A के बहुत काफ़ी ज़्यादा मेजर फंक्शंस हैं. ठीक है. आपकी विजन डिपेंडेंट होती है विटामिन A के ऊपर. आपकी स्किन के एपिथेलियल सेल्स वो डिपेंडेंट होते हैं. आपकी डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ डिपेंडेंट होती है विटामिन ए के ऊपर. इसी तरह विटामिन डी इज इन्वॉल्व विद योर आपकी बोन की डेवलपमेंट के अंदर. ठीक है. आपकी स्टीरॉयड फॉर्मेशन. ठीक है. आपके कैल्शियम के साथ इसका जो होम्योस्टेसिस होता है, ठीक है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है. विटामिन डी इनकी एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. यहाँ हमारा एक जर्नल ट्रेंड है, किसी की विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए उसको इंड्रॉप डी के टीके पिलाना शुरू कर देते हैं. ठीक है. आई मीन एग्जैक्ट डोज का पता होना चाहिए, उसकी एज, उसका वेट पता होना चाहिए, और कितने आपने उसको टीके पिलाने हैं या लगाने हैं. ठीक है. या उसको अगर ओरल सप्लीमेंटेशन भी देने जा रहे हैं किसी ऐसे पेशेंट में जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई भी है, तो यार कब तक देनी है? अनलिमिटेड टाइम के लिए तो नहीं दे देनी, उसका फॉलोअप करवाना है. ठीक है. तो एक्सेस कैन ऑल्सो बी डिजास्टर्स फॉर योर बॉडी. ठीक है. प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. तो इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि दे कैन बी स्टोर्ड इन योर बॉडी इन स्पेसिफिकली इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू. ओके जी. विटामिन ए, retinoids, it's a family of molecules which are related to retinol, vitamin A, and is essential for different functions, key functions of your body, such as vision, eyesight, vision, that is dependent on vitamin A. Reproduction, an ability to produce young ones, ठीक है, to produce offspring, मेल हो या फीमेल हो, विटामिन ए प्लेज अ रोल. ग्रोथ, जब बच्चा अपनी एडल्ट एज में जा रहा होता है, टीन एज से पहले चाइल्डहुड से बड़ा हो रहा होता है, उसकी बोन्स, उसकी विजन, उसके डिफरेंट टाइप्स के सेल्स, ठीक है, दे आर इन द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. विटामिन ए डिपेंडेंट होती है. एंड मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, स्किन. ठीक है. स्किन जितनी काफ़ी ज़्यादा अभी हम चल के इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे. एक्ने की ट्रीटमेंट के अंदर विटामिन ए यूज़ होता है. जिन लोगों को एक्ने होती है, अदर देन अपार्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, अपार्ट फ्रॉम डाइटरी मॉडिफिकेशंस, विटामिन ए इज़ एक ख़ास फॉर्म होती है विटामिन ए की, वो रूटीनली प्रिस्क्राइब की जाती है बिकॉज वो एपिथेलियल सेल्स को मेंटेन करती है, उनके अंदर सीबम को कम करती है, उनके अंदर जो 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 ज़्यादा ऑयली स्किन होती है जिन लोगों की, उसके अंदर जो एक ख़ास टाइप का बैक्टीरिया जो ग्रो करना शुरू कर देता है, जो कि वो पस बनाना शुरू करता है आपकी पिंपल्स के अंदर. ठीक है. वो इसी वजह से होता है कि आपके एपिथेलियल सेल्स की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही होती. तो विटामिन ए इज कैन बी यूज एज अ ट्रीटमेंट फॉर एक्ने, सिवियर एक्ने. तो आगे चल के डिटेल में देखते हैं. तो ये 4 फंक्शंस आपको विटामिन ए या रेटिनॉइड्स का अगर पूछा जाए आपसे कि क्या कौन से फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, ज़रूरी है. विजन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, स्किन से याद रख लेंगे. ठीक है. रेटिनोइक एसिड की बात करें तो इट्स ड्राइव फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ डाइट्री रेटिनॉल, मीडिएट्स मोस्ट ऑफ द एक्शंस ऑफ द रेटिनॉइड्स एक्सेप्ट फॉर विजन. ठीक है. विजन जो है वो रेटिनॉल डिपेंडेंट होती है. डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है. विटामिन ए की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ते हैं. उसके अंदर रेटिनॉल है, रेटिनॉल है, रेटिनोइक एसिड है और कैरोटिन्स है.
ठीक है, 4 किस डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं विटामिन ए की। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं रेटिनॉल की, हमने बात की तो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें विजन की, तो रेटिनॉल इज रिक्वायर्ड फॉर योर विजन। ठीक है, और अगर रेटिनोइक एसिड की बात करें तो बाकी सारे फंक्शंस को तो परफॉर्म करता है एक्सेप्ट फॉर विजन। सो इट्स एमसीक्यू, जेन में रखिएगा। ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन रेटिनॉल। ये ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेटिनॉल एंड रेटिनॉल। ठीक है, इंटरचेंजेबल फॉर्म्स हैं। ठीक है, माइनर साइन के स्ट्रक्चर के अंदर बीटा आयोनिन रिंग लगी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, रेटिनॉल इज बेसिकली एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ रेटिनॉल। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन रेटिनॉल, ओ। ठीक है, रेटिनॉल की बात ही करें हम, रेटिनोल की बात करें। इट इज बेसिकली अ प्राइमरी अल्कोहल दैट कंटेन्स बीटा आयोनोन रिंग। एक खास किस्म की रिंग होती है जो जॉन जॉन से सब्सटेंसेस के अंदर होती है, थोड़ी सी फ्रेग्रेंस प्रोड्यूसिंग होती है। आयोनोन्स क्या होते हैं? दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेगरेंस। परफ्यूमरी जो होती है, आपकी परफ्यूम इंडस्ट्री है, उसके अंदर आयोनोन्स यूज होते हैं। ठीक है, बीटा आयोनोन रिंग जो है होती है वो रेटिनॉल का पार्ट होती है विद एन अनसैचुरेटेड साइड चेन। उसके बाद एक अनसैचुरेटेड साइड चेन लगी होगी। इट इज यूजुअली फाउंड इन एनिमल टिश्यूज एज अ रेटिनाइल ईस्टर फॉर्म। ठीक है, एज अ रेटिनाइल ईस्टर फॉर्म विद अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। The second form of vitamin A is called as retinal. The first one was with the O-retinol, जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। बीटा आयोनिन रिंग लगी हुई है और साथ एक उसके अनसैचुरेटेड साइड चेन लगी हुई है। रेटिनॉल विद द ए, दिस इज एल्डिहाइड derived फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल। अगर ये रेटिनॉल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक प्राइमरी अल्कोहल है, बीटा आयोनिन रिंग है और एक अनसैचुरेटेड साइड चेन है, अगर इसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए, तो आपके पास एल्डिहाइड डेरिवेटिव आ जाता है जिसका नाम है रेटिनॉल। द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। इस पॉइंट को याद रखेंगे। among all 4 forms of vitamin A, the first 2 forms, retinol and retinol, can readily be interconverted। मतलब रेटिनॉल रेटिनॉल में कन्वर्ट हो सकती है और रेटिनॉल रेटिनोल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। The third form, which is called as retinoic acid. This is the acid। पहली वाली अल्कोहल थी, दूसरी वाली एल्डिहाइड थी, इसका एल्डिहाइड डेरिवेटिव था। द थर्ड वन इज एसिड derived from the oxidation of retinol। ठीक है, सबसे पहले रेटिनॉल की बात की हमने। रेटिनॉल की ऑक्सीडेशन होती है तो रेटिनॉल बन सकता है और रेटिनॉल वापस दोबारा रिड्यूस होकर रेटिनॉल भी बन सकता है। Okay, we are talking about the third form which is called as retinoic acid। जो सेकंड फॉर्म बनी थी रेटिनॉल, उसकी अगर ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो एक एसिड बनता है जिसका नाम है रेटिनोइक एसिड। बट दिस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन द बॉडी एंड देयरफॉर कैन नॉट गिव राइज टू आइदर रेटिनॉल और रेटिनॉल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट रेटिनॉल इन योर बॉडी, यू कंज्यूम रेटिनॉल इन योर बॉडी। आप डाइट लेते हैं जिसके अंदर रेटिनॉल है, रेटिनॉल इज विद ओ, राइट। विजन के अंदर यूज होना है रेटिनॉल के अंदर, वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है रेटिनॉल की और रेटिनॉल के अंदर कन्वर्ट होता है। समहाउ आपकी बॉडी को रेटिनोइक एसिड की जरूरत पड़ती है और वो रेटिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है रेटिनोइक एसिड के अंदर। नाउ दिस इज द स्टेज, दिस इज द फॉर्म व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू रेटिनॉल और रेटिनॉल। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जी, ये प्रोडक्शन से क्या मुराद है विटामिन ए? जी, फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी एज वेल। जी, जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं उनके अंदर डिटरमिन करना ज़रूरी होता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी तो नहीं है।
और अगर हो तो विटामिन ए के सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं जी। इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है विटामिन ए डेफिशिएंसी। ओके, प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड। ओके जी, ये लें। ये बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है आपकी लिपिन कॉर्ड के अंदर, और इसी तरह लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप लिपिन कॉर्ड खोलोगे, उसके अंदर चैप्टर नंबर 28 के अंदर विटामिन ए का टॉपिक खोलोगे, उसके अंदर आपको सेम टू सेम ऐसे ही ये नजर आएगा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग बीटा आयोनीन रिंग, और उसके साथ एक लगी होती है अनसैचुरेटेड साइड चेन। मैं इसकी तस्वीर दिखाता हूँ आपको। दिस इज द सेकंड फॉर्म विद ए। रेटिनॉल से रेटिनाल कैसे बनता है? इस रेटिनॉल की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो रेटिनाल बन जाता है। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल थी, ये एल्डिहाइड है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं थर्ड फॉर्म रेटिनोइक एसिड। अब जो रेटिनाल बना है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये एसिड बन जाएगा जिस विच इज कॉल्ड एज रेटिनोइक एसिड। नाउ जो पहले बना है पिछली स्लाइड के अंदर रेटिनॉल से रेटिनाल, ये दोबारा रेटिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी रिडक्शन सिंपली हो जाएगी तो ये रेटिनॉल बन जाएगा। उसकी दोबारा ऑक्सीडेशन होगी तो ये इंटर कन्वर्टेबल है। Retinol can be converted into retinol as well as retinol can be converted into retinol. Now, look at this third form retinoic acid. हमने बात की रेटिनॉल से रेटिनाल बनता है और रेटिनाल से रेटिनोइक एसिड बनता है, मगर once retinoic acid is formed, it cannot go back to be converted into retinol or retinol. ठीक है, ये बस बन गया तो बन गया, ये वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसकी रिडक्शन नहीं हो सकती। It cannot be reduced in the body to retinol or retinol. The fourth form, that is the plant origin, that is from the plant origin. Plant foods के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, गाजरें इज एग्जाम्पल। ठीक है, आपकी जो कैरेट्स होती हैं उसी से नाम ये है कैरोटीन। जो कैरेट्स आर supposed to be rich in vitamin A, जो आप कंज्यूम करते हैं जिनकी विटामिन ए डेफिशिएंसी हो, उसको मशवरा दिया जाता है कि आप कैरेट्स अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करें। which can oxidatively cleaved in the intestine to yield two molecules of retinol. So we are among all four forms of vitamin A. This is the only form, once it is formed in the body, cannot be converted into any other form. ठीक है, आप जो एनिमल डाइट कंज्यूम करते हो उसके अंदर आप रेटिनाइल ईस्टर्स या रेटिनॉल फॉर्म कंज्यूम करते हो, वो आगे दो फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, एक के अंदर डायरेक्टली विच इज कॉल्ड एज रेटिनॉल, और रेटिनॉल आगे से कन्वर्ट हो सकती है रेटिनोइक एसिड के अंदर। बीटा कैरोटीन इज अ सेपरेट एंटिटी, द फोर्थ फॉर्म विच इज नॉट फ्रॉम द एनिमल ओरिजिन, which belongs to the plant foods. When your body consumes carrots for example, और आपने बीटा कैरोटीन इंजेस्ट की तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाके उसकी क्लीवेज होगी, ऑक्सीडेटिवली क्लीव्ड होगी वो, और वो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनॉल प्रोड्यूस करेगी। और हमें पता है रेटिनॉल रेटिनोल में कन्वर्ट हो सकता है, जिस तरह रेटिनोल रेटिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, इसी तरह रेटिनॉल रेटिनोल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। So in humans, the conversion is inefficient, and the vitamin A activity of beta carotene is only about the sixth that of retinol. So it is not considered to be a very good source of vitamin. Vitamin A होता है in the form of beta carotene, मगर आप animal source को ही ज़्यादा preference देते हो। ठीक है, उसकी आगे further conversions आसानी से हो जाती है in comparison to the plant foods. Let's have a look on this figure. This is beta alanine ring, that is a component of all four forms of vitamin A. ठीक है, this is retinol, CH2OH लगा होगा इसके साथ। रेटिनल की बात करेंगे या रेटिनॉल की बात करेंगे तो CHO आपको नजर आ रहा है, rest of the structure is same. These two forms are interconvertible. Retinol जो कि एनिमल सोर्स से मिल रही है, बॉडी के अंदर आती है,
विजन के अंदर आपको ज़रूरत रेटिनॉल की है फॉर इंस्टेंस, इट विल बी ऑक्सीडाइज इनटू रेटिनॉल। आपकी बॉडी को रेटिनॉल यूज़ हो गया, विजन के अंदर बच गया, उसमें दोबारा कन्वर्ट होना है तो वो रिड्यूस हो जाएगा रेटिनॉल के अंदर। These two forms are interconvertible. For example, your body requires retinoic acid. Now, the retinol after oxidation will give rise to retinoic acid. But once this retinoic acid is formed, this is an alcohol, right? COOH. Once this retinoic acid is formed, it can not be converted back into either retinol or retinol. ठीक है? सिस और ट्रांस का मतलब आपको पता है? सिस का मतलब होता है दिस साइड और ट्रांस का मतलब होता है दैट साइड। ठीक है, तो काफ़ी टर्म्स आएंगी सिस और ट्रांस की आगे चल के। 11 सिस, ट्रांस, ऑल ट्रांस। ठीक है, तो वो जो लोकेशन है उसकी अगर बिलो है या अबव है, वो उसके मुताबिक आप सिस और ट्रांस को करते हैं। ओके जी, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन ए। For example, you have consumed a diet. It enters into the intestine. Intestine से absorption होती है काइलोमाइक्रॉन्स के थ्रू, ट्रांसपोर्ट हो जाना है उसने ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होके लिवर के पास जाना है। ठीक है, so it ultimate goal is to transport to the liver. For example, you have consumed retinal esters present in your diet. Once they will enter into the intestinal mucosa के अंदर, they will be hydrolyzed and releasing what? Retinol and free fatty acids. ठीक है, रेटिनाइल ईस्टर्स, एस्टर का मतलब पता है आपको क्या होता है? फैटी एसिड। रेटिनाइल ऑब्वियसली रेटिनॉल और ईस्टर्स के कम्बिनेशन को आप बोलते हैं रेटिनाइल ईस्टर्स। जब आपकी डाइट के अंदर रेटिनाइल ईस्टर्स आप कंज्यूम करते हो, वो इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ हाइड्रोलिसिस होती है, तो दीज रेटिनाइल ईस्टर्स ब्रेक डाउन इनटू रेटिनॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स। यहाँ से रेटिनॉल क्या करता है? रेटिनॉल ड्राइव फ्रॉम एस्टर्स एंड फ्रॉम क्लीवेज एंड रिडक्शन ऑफ कैरोटीन्स एज वेल, अगर प्लांट ले रहे हैं आप, इज रीएस्टेरिफाइड to long chain fatty acids in the intestinal mucosa and secreted as a component of chylomicrons into the lymphatic system. ठीक है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, पहले वो सिक्रीट होगा काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर, उसके अंदर जहाँ फैट जा रहा है वहाँ साथ ये विटामिन भी जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, और फिर काइलोमाइक्रॉन या लिम्फेटिक सिस्टम विल कम्युनिकेट विद योर ब्लड स्ट्रीम, और फिर उधर से इट विल एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम से वो होते हुए लिवर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, मगर जब लिवर में जाएंगे दोबारा वो रेटिनाइल ईस्टर्स बन जाएंगे। आपकी बॉडी कंज्यूम करिए रेटिनाइल ईस्टर्स, रेटिनाइल ईस्टर्स इकट्ठे सिक्रीट नहीं हो सकते काइलोमाइक्रॉन्स में, उनको क्लीव होना है, उनको हाइड्रोलाइज होना है इन द इंटेस्टाइन इनटू रेटिनॉल एंड फैटी एसिड्स। जब वो सिक्रीट हो जाते हैं, कंपोनेंट बन जाते हैं काइलोमाइक्रॉन का, वहाँ जाके फिर दोबारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, दोबारा रेटिनाइल, मतलब आपने कंज्यूम जो किया था, डाइट में लिया था, वो भी रेटिनाइल ईस्टर्स दिए थे, सिर्फ जो बीच में ट्रांजिट हो रहा है उनका इंटेस्टाइन से, वहाँ वो उसकी क्लीवेज होती है, हाइड्रोलिसिस होती है अलग अलग दो फैटी एसिड्स के अंदर और रेटिनॉल के अंदर, वो टूट जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, मगर जब वो काइलोमाइक्रॉन के अंदर जाते हैं तो फिर दोबारा से रीयूनाइट होकर रेटिनाइल ईस्टर्स बना देते हैं, which are taken up and stored in the liver. ठीक है, with the help of diagram करते हैं इसको। ओके जी, here we have a diet। दो तरह की डाइट हम कंज्यूम कर सकते हैं, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। ठीक है, एनिमल सोर्सेज की बात करते हैं तो रेटिनाइल ईस्टर्स एंड रेटिनॉल। ठीक है, ये दीज आर एनिमल सोर्सेज। रेटिनाइल ईस्टर्स का मतलब है रेटिनॉल बाउंड विद द फैटी एसिड्स। बीटा कैरोटीन्स की जब नाम आएगा तो वी शुड हैव this thing in mind के the source is from certain plants, not from animal source.
ठीक है, so this is diet. Beta carotene is a plant source, will enter into the intestinal cell. It is first converts beta carotene into retinol. हमने बात की थी रेटिनॉल और रेटिनॉल आर इंटरकन्वर्टेबल. रेटिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू रेटिनॉल इन द इंटेस्टिनल सेल. हम सेकंड सोर्स की बात करते हैं, एनिमल सोर्स की. हमने शुरू में बात की थी जब एनिमल सोर्स से विटामिन ए कंज्यूम करते हो तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल ईस्टर्स आती है. रेटिनाइल ईस्टर्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू फैटी एसिड्स. ये एस्टर्स अलग हो जाते हैं और रेटिनाइल वाला जो पार्ट है वो रेटिनॉल, और ये सिक्रीट होता है इंटेस्टिनल सेल से, जिसके अंदर काइलोमाइक्रोन के अंदर जब ये जाते हैं फैटी एसाइल को ऐड होता है रेटिनाइल ईस्टर्स के साथ और मिला के दोबारा रेटिनाइल ईस्टर्स बन जाते हैं जो कि लिम्फ का पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है. लिम्फेटिक सिस्टम से ये आगे ब्लड में एंटर होता है और ब्लड से ये लिवर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है. इस मैकेनिज्म की समझ आ गई है. काइलोमाइक्रॉन्स माइक्रॉन्स बेटा ये होते हैं, दीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मिजल्स, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं फैट या फैट सॉल्युबल रिलेटेड सब्सटेंसेस को फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर. ठीक है, ये पैकेज्ड ये पैकेज करके डिफरेंट फैट या फैट एसोसिएटेड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर. ये फ्रीली नहीं जा सकते, ये रेटिनाइल ईस्टर्स यहाँ से निकल के फ्रीली नहीं पहुँच सकते लिवर में. उनको प्रोसेस होना है, इनको पैकेज होना है इनटू अ सर्टेन मॉलिक्यूल्स. इनके साथ फैट भी जा रहा है. अब रेटिनाइल ईस्टर की बात कर रहे हैं तो रेटिनाइल के अंदर रेटिनोल भी है और एस्टर्स मीन्स फैटी एसिड्स. अल्टीमेट गोल इज टू एब्जॉर्ब वट एवर यू हैव कंज्यूम्ड इन योर डाइट. आपकी बॉडी के अंदर लाना मकसद है ना. अब जो फैट मेटाबॉलिज्म है सारा वो भी लिवर डील कर रहा है, और फैट की मेटाबॉलिज्म अगर डील कर रहा है, आपके फैट्स वहाँ बनने हैं, टैग सिंथेसिस होनी है, ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स बनने हैं, आगे चल के एलडीएल बनना है, एचडीएल बनना है, वो सारा कुछ लिवर ने बनाना है ना. ठीक है, सो आप जो कुछ भी खाने में ले रहे हो, आप डाइट में कंज्यूम कर रहे हो, बेशक वो प्लांट सोर्स से है या एनिमल सोर्स से है, उसने पैकेज होके यहाँ से निकलना है. ठीक है, फ्रीली क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हाइड्रोफोबिक होते हैं. ये फ्रीली ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? अनलाइक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं. आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर ये अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते. ये दे शुड बी ट्रैवल इन सम सॉर्ट ऑफ, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल. उसके साथ उसके अंदर पैकेज होके जाएंगे ना. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा, बुक को फॉलो करेंगे. फरहान ने क्वेश्चन किया हुआ है, स्लाइड के अंदर 16 लिखा हुआ है और बुक के अंदर 112 लिखा हुआ है. आई थिंक आप बुक को फॉलो करेंगे, देयर कुड बी अ मिस्टेक. आप बुक को फॉलो करेंगे, स्लाइड को फॉलो नहीं करेंगे. ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग इट. हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो. आप बुक को फॉलो करेंगे. मैं इसको रिकन्फर्म करूँगा नेक्स्ट फिर लेक्चर के अंदर, आपको दोबारा से बताऊँगा, इसको करेक्ट करवा दूँगा. ठीक है, ओके जी. लाइबा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? काइलोमाइक्रॉन्स, और आपका भी एमन का भी हो गया होगा क्वेश्चन क्लियर, उसका आंसर मिल गया होगा उसको कि इंटर कन्वर्जन्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है. जी, नहीं, डिपेंड्स. रेटिनाइल नहीं, रेटिनोइक एसिड यू आर ट्राइंग टू से. आई थिंक टाइपिंग गलत हुई है आपसे. रोल नंबर 105. जरूरी नहीं है सारा रेटिनोइक एसिड में जाएगा. इनकी इंटर कन्वर्जन चलती रहेंगी आगे. देखो, हमने 4 फंक्शंस डिस्कस किए हैं ना. हमने 4 फंक्शन शुरू में जो मेन फंक्शंस ऑफ विटामिन ए है वो हमने डिस्कस किए हैं, राइट.
सो जो जो जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, जिस फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ इंटर कन्वर्जन हो जाएंगी। अगर किसी जगह पे रेटिनोइक एसिड की जरूरत पड़ती है आपकी बॉडी को, तो रेटिनोइक एसिड के अंदर कन्वर्जन हो जाएगी। जी इट्स अ साइकिल, इट्स अ साइकिल। वो अभी हमने चलना है आगे, आगे चल के आपके पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इट्स अ साइकिल। अभी देखो, अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ हमने सिर्फ इंटेस्टाइन देखी है ना, के अंदर ये चेंजेस हो रही हैं। आपको इस तरह ही याद कर लेना है कि इंटेस्टाइन में इस तरह दो सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्सेज से आएंगी तो जो बीटा कैरोटीन है वो डायरेक्ट रेटिनॉल में नहीं कन्वर्ट हो सकती, पहले रेटिनॉल के अंदर कन्वर्ट होगी, और रेटिनॉल की रिडक्शन होगी तो रेटिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यू नीड इंटेस्टिनल सेल के अंदर रेटिनॉल, ठीक है। अगर एनिमल सोर्स से आ रहा है तो रेटिनाइल ईस्टर्स की फॉर्म आ रही है। फर्स्ट इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड रेटिनॉल। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए रेटिनॉल, रेटिनाइल ईस्टर्स इसको क्रॉस नहीं कर सकते, रेटिनॉल क्रॉस कर सकता है, तो रेटिनॉल के अंदर कन्वर्जन होनी ही होनी है, ठीक है। सो रेटिनॉल विल एंटर इनटू द इंटेस्टिनल सेल, ठीक है। इंटेस्टिनल सेल के अंदर we have now this retinol coming from two sources, one from the plant source through this route and one from the animal source through this route. Intestinal cell के अंदर fatty acyl CoA present होता है. These fatty acids cannot transport freely, ठीक है, और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते. रेटिनोल कैन क्रॉस दिस बैरियर. आपकी डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स हैं ना, और उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। कुछ फ्री ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं कुछ चीज़ों की नहीं हो सकती, उनको फर्दर सिंपलर फॉर्म के अंदर आना होता है। कुछ के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर, सामने लास्ट वाइटामिन किया था, तो फर्ज करें यहाँ वाइटामिन B12 है, तो वाइटामिन B12 को यहाँ से निकलने के लिए, ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत पड़ती थी ना, वो एक रिसेप्टर यहाँ लगा होगा इंट्रिंसिक फैक्टर का, ठीक है। वो उसके बाद बाइंड करता है और उसको एक सेफ एग्जिट देता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। सो हर एक डिफरेंट वाइटामिन का डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है। सो इन केस ऑफ विटामिन ए हम दो सोर्सेज की बात करें, एनिमल सोर्स से जो वाइटामिन है ये इजीली आराम से पास हो जाता है, एंटर हो जाता है इंटेस्टिनल सेल के अंदर, नॉट इन द ब्लड स्ट्रीम। अभी ब्लड स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे। इंटेस्टिनल सेल के अंदर पहले से फैटी एसाइल कोए होता है जो कंबाइन करके दोबारा रेटिनाइल ईस्टर बनाता है। रेटिनाइल ईस्टर काइलोमाइक्रॉन्स रेटिनाइल ईस्टर्स को लेके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बनते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम बाद में ब्लड में एंटर होकर लिवर तक पहुंच जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड को देखें। सो वी वर हेयर काइलोमाइक्रॉन्स तक, लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड से काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट्स, और वो उसको अंदर लेके जाते हैं ऑल ट्रांस रेटिनोल, ठीक है। ये ऑल ट्रांस रेटिनोल, नाउ यू हैव इन लिवर ऑल ट्रांस रेटिनोल, जो कि अगर स्टोर होना है तो रेटिनाइल पाल्मिटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पाल्मिटेट क्यों? C16 कार्बन है, 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है, और ये आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एबंडेंस के अंदर होता है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड 16 कार्बन है, इवन नंबर्ड है, इट इज़ फाउंड इन एबंडेंस इन योर बॉडी। और भी हो सकते हैं, मगर जो मैक्सिमम जो जो आपका वॉल्यूम कंटेन करता है आपकी बॉडी, वो पाल्मिटेट होता है। इट्स इन एबंडेंस, द मोस्ट एबंडेंट फैटी एसिड इन योर बॉडी। तो ये रेटिनॉल है, ये रेटिनाइल फॉर्म में चला गया, और इसके साथ जब बाइंड होगा और ये यहाँ स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड retinol outside the liver for certain activity to perform. Then it will be converted into all trans retinol. It will leave the liver. Once in the bloodstream, it will bind with the protein which is called as RBP or retinol binding protein, और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है रेटिनोल। रेटिनॉल फ्री सर्कुलेशन में नहीं फिर सकता खुद से, ठीक है, फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकता। इसको सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए जिसका नाम है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन।
इसके साथ बन जाएगी, मिल जाएगी, इसके साथ बाइंड करेगी, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जिसको आप बोलेंगे रेटिनॉल आरबीपी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके जी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन की, जो कि हम सेल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कि सेल डिफरेंशिएशन होने जा रही है जेनेटिक लेवल के ऊपर, और वहाँ आपको रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड की ज़रूरत है। सो पिछली साइड को देखेंगे तो it's for example it's stored in the liver. Now you need for a particular process the retinol or retinoic acid. So क्या होगा, it will be converted into retinol. Retinol will leave the liver, it will bind with the RBP, retinol binding protein, form the complex, ठीक है, and will lead या will go towards that particular location. ठीक है, इसको फॉलो करते जाएं। आपकी उस बुक के अंदर इकट्ठी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, मगर इधर मैंने इकट्ठी डायग्राम आ नहीं सकती, एक स्लाइड के अंदर फिट इन नहीं होती, तो मैंने इसको चंक्स के अंदर तोड़ तोड़ के अलग अलग स्लाइड्स के अंदर किया है, तो फॉलो उसी को करेंगे। नाउ इट हैज लेफ्ट द लिवर, वी आर टॉकिंग अबाउट रेटिनॉल। ऊपर हमने बाइंडिंग की थी रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। नाउ इट हैज टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है, जहां इसने जाके सेलुलर डिफरेंशिएशन के अंदर हेल्प करना है। रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन उससे अलग हो जाएगी, and retinol will gain entry into the nucleus of the target tissue. Upon entering into the target tissue, it will be converted into retinoic acid. Retinoic acid क्या करता है? It will lead to gene activation, messenger RNA formation, और messenger RNA से specific proteins बनेंगी और आपके पास cellular differentiation हो जाएगी, ठीक है। नटशेल अगर बात करें तो एक्शंस इन अ टारगेट सेल अगर आपसे पूछा जाए रेटिनॉल का, तो retinol is oxidized to retinoic acid, which binds to nuclear receptors. Activated retinoic acid receptor stimulates responsive genes. ये सारा मैकेनिज्म आपने बता देना। We will continue our next lecture from mechanism of action. ठीक है, इसमें हम डिटेल में इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ये इनसाइड ये क्या हो रहा है, रिसेप्टर्स किस तरह काम करते हैं, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रेटिनॉल वंस एंटर्स इनटू द टारगेट सेल, वो आगे जाके सेलुलर डिफरेंशिएशन के अंदर डिटेल के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, और आगे फर्दर विजुअल साइकिल भी पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ जब घर जाके पढ़ोगे इसको तो देख लेना व्हाट आर द मेन फॉर्म्स, थ्री फॉर्म्स, फोर फॉर्म्स का पता होना चाहिए, इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कौन सी फॉर्म किससे ड्राइव होती है, कौन सी फॉर्म रिवर्सिबल है, इंटरचेंजेबल है, कौन सी नहीं है, कौन सी प्लांट सोर्स से आती है, कौन सी एनिमल सोर्स से आती है। तो जब आप कंज्यूम करते हो डाइट, आप इंटेस्टिनल पार्ट सारा इसका मेटाबॉलिज्म का देख लेना, जाके एक दफ़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेना। उसके बाद ये एब्जॉर्ब होकर लिवर में आता है, लिवर में एक स्टोर हो जाता है, और जब भी इसको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं द बॉडी, सेलुलर डिफरेंशिएशन भी हो सकती है, विजुअल साइकिल के अंदर भी जरूरत पड़ सकती है, तो वहाँ से स्टोर्ड फॉर्म जो है वो रिलीज होती है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाती है, रेटिनॉल आरबीपी कॉम्प्लेक्स, और डिलीवर हो जाती है पर्टिकुलर सेल या टिश्यू को, और वहाँ जाके अगर रेटिनोइक एसिड की ज़रूरत है तो रेटिनोइक एसिड बन जाएगा उससे, अगर रेटिनाल की ज़रूरत है तो रेटिनाल बन जाएगा, ठीक है। और सारे जो हमने शुरू में फोर मेन फंक्शंस इसके डिस्कस किए थे, मैंने आपको मेंशन किया था कि इसकी चार फंक्शंस हैं, विजन के अंदर, स्किन के अंदर, सेलुलर डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सारा कुछ, तो वो अपना काम करता है, ठीक है। सो अमंग ऑल वाइटामिन्स इट्स अ ट्रिकी वन, आपको इसको साथ साथ देखना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग करके कॉन्सेप्ट बना के चलना है, वरना चीज़ें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगी। जितना मैंने अभी आपको बताया, टास्क दिया है, ओवर द वीकेंड पढ़ो, नेक्स्ट लेक्चर प्रॉबेबली वुड बी ऑन ट्यूसडे, हम इसको फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार, जितना पार्ट हमने आज कवर किया, इसको जाके रीड जरूर करना है आपने। जी बिल्कुल ठीक है।
जी, रेटिनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेटिनोइक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है और रेटिनॉल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली रेटिनॉल में होता है, पहले रेटिनॉल में होकर रेटिनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। स्टोर्ड फॉर्म जो है वो दैट इज रेटिनॉल, बेशक वो प्लांट सोर्स से आ रही है, एनिमल सोर्स से आ रही है, हमने जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट कवर किया है। ठीक है, अल्टीमेट बनना आप रेटिनॉल ही है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के लिए रेटिनाइल ईस्टर्स की मदद पड़ती है आपको, डाइट में भी आपके रेटिनाइल ईस्टर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि जब लिवर में पहुंच जाएगा तो रेटिनॉल रेटिनाइल ईस्टर्स की फॉर्म के अंदर स्टोर होगा, उसमें से रेटिनॉल निकलेगा, जब लिवर से डिफरेंट टिश्यूज़ में जाएगा और वहाँ जाके अगर रेटिनॉल में कन्वर्ट होना है तो रेटिनॉल में कन्वर्ट होकर अपना काम करेगा। फॉर एग्जांपल हम विजन की बात करते हैं, और अगर हम जेनेटिक लेवल की बात कर रहे हैं, सेलुलर डिफरेंशिएशन या ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो रेटिनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। जी जी, रेटिनॉल इज़ द प्राइमरी फॉर्म जी, जो आगे दूसरी फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होती है। जो आप डाइट से कंज्यूम करते हो वो रेटिनॉल के अंदर ही आती है। रेटिनाइल ईस्टर्स का मतलब है वो फैट के साथ जाती है, सही है, वो फैट के साथ रहती है, फैट के साथ ही ट्रैवल करती है, मगर जब फाइनल उसको लिवर में जाके स्टोर हो जाती है रेटिनाइल ईस्टर्स की फॉर्म में, जब उसके अंदर से उसने रिलीज होना है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इन एनी टिश्यू जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है, तो वो रेटिनॉल वहाँ से रिलीज़ होगा, फिर वो ब्लड के अंदर फैट्स के साथ ट्रैवल नहीं करेगी, बल्कि रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ट्रैवल करके इट विल रीच टू अ टारगेट टिश्यू। एनी क्वेश्चंस? ओके जी, थैंक यू, सी यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। अल्लाह हाफिज़। ओके, नो मोर लेक्चर। ठीक है, ये फ्राइडे को थोड़ी सी कंफ्यूजन ही हो जाती है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, ठीक है ठीक है, आई ऑलवेज डू इट। ठीक है, सो वी हैव गॉट टाइम, अगर किसी का क्वेश्चंस हैं तो आई एम हियर टू आंसर। मैं खुद से नहीं इसको लेके चल रहा आगे, कुछ पढ़ा नहीं रहा आपसे, फॉर योर ईज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी का कोई क्वेश्चन मिस हो गया है या आंसर नहीं हुआ तो ही कैन आस्क मी और शी कैन आस्क मी। जी, नो वन इज इंटरेस्टेड in asking question. Everybody wants to have a good weekend, right? बेटा उसका केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, नेचर ने बनाया, रेटिनोइक एसिड दोबारा रिड्यूस नहीं हो सकता। दूसरा ये भी हो सकता है वो अल्कोहल फॉर्म में चला गया ना, ठीक है, वो एल्डिहाइड फॉर्म के अंदर दोबारा नहीं कन्वर्ट हो सकता। जो कन्वर्जन मैकेनिज्म है वो नहीं नेचर ने दिया कि उसकी दोबारा कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, रेटिनोइक एसिड बनता ही तब है जब आपकी बॉडी के अंदर उसकी एक्सट्रीम नीड होती है और वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है, उसको दोबारा फॉर्म में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और वहाँ से रेटिनॉल जब निकलता है रेटिनोइक एसिड बनाने की नीयत से, वो निकलता ही उतना है कि वो उतना रेटिनोइक एसिड बनाता है। रेटिनोइक एसिड जाके आगे जो भी उसने सेलुलर लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर आपने जो क्रोमैटिन होता है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जाके अपना जितना भी उसने जीन एक्टिवेशन करनी होती है वो उतना करवा लेता है, दोबारा जाने की वापस उसको ज़रूरत होती नहीं है। जी, एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी अदर विटामिन? वो जो वाटर सॉल्युबल पड़े थे उसका कोई क्वेश्चन अगर किसी का रह गया? जी,
ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।